Welcome back, dear students. Today I am here with your English reader book, chapter number 4, Shipwrecked. Shipwrecked means the destruction of the ship. So, this is a excerpt from the Swiss Family Robinson. So, it is a small part of a novel which is its name is the Swiss Family Robinson. So it's a small part only. In this, we are going to read the Robinsons are caught in a violent sea storm. That the Robinson family is caught in a sea storm, and how they all get out of that, and how do they survive? How they get out of that sea storm. So in section 1, in the fill up form only, they have asked us some few questions. 4 questions are also there, but this we are going to explain after we'll read the section 1. So we'll read the section 1 first. For 7 days a terrible storm raged at sea. The ship carrying the Robinson family tossed like a top. For 7 days, in which the ship in which they were traveling, the Robinson family was traveling, they were caught in the sea storm, and the ship was moving on the water, on the sea waves like a top. Huge waves battered the sides. Big water waves were striking the ship from all sides. Leaks sprung up everywhere. Leaks were there. That means the cracks were there in the ship and the water was coming inside the ship. The mast had been split by lightning and the sails ripped by the howling wind. The mast was also been torn off. Split means torn off. It was because of the wind and the lightning. The ship was in immediate danger of sinking. So it was likely to sank the ship. That the ship is going to sink within a few time, within a limited time itself. Be brave, children, said Mr. Robinson, to his 4 sons. So the Mr. Robinson was father, and he had 4 children, 4 sons, rather I would say. So 4 sons were there. The Fritz, the eldest, at 15. So the eldest son was 15 years old, nodded his head. He moved his head to respond his father. अपने पापा का रिस्पॉन्स देते हुए उसने सिर हिलाया. The other 3 boys, 13 years old Ernest, 10 years old Jack, and 7 years old Franz. So other 3 boys were named as Ernest, Jack, and Franz. Try to stay calm. They try to be calm. Calm means शांत रहने की उन्होंने कोशिश की. But their fear grew as in wind and rains outside increased. पर उनका जो डर था वो बढ़ गया कि बाहर बारिश और हवा बढ़ गई थी. Even Mrs. Robinson shot a frightened look at her husband. बल्कि जो मिसेस रॉबिन्सन थी वो भी डरी हुई सी उन्होंने एक अपने हस्बैंड को लुक दी. So then, amid the roar of the waves crashing against the ship, the Robinson heard 2 shrill cries. तब उस शोर में ही, शोर कौन सा? वेव्स जो क्रैश कर रही थी शिप्स को, वेव पानी की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ के बीच में रॉबिन्सन को 2 आवाज़ें सुनाई दी. पहली आवाज़ क्या थी? लैंड, लैंड, ज़मीन. सो वॉज द फर्स्ट. फॉलोड ए मिनट लेटर, और 1 मिनट बाद एक दूसरी आवाज़ आई, बाय लोअर अवे मैन, की धीरे धीरे चलो, पानी के अंदर ही फ्लो करते हुए, टू रीच द सेफ्टी प्लेस. सो मिस्टर रॉबिन्सन एंड फ्रिट्ज डैश्ड अप ऑन डेक. मिस्टर रॉबिन्सन एंड फ्रिट्ज जो थे, डैश्ड अब मीन्स भाग कर, वो तेज़ी से वो पहुँचे डेक के ऊपर, शिप के अपर पार्ट पर. फ्रॉम देयर दे सॉ द लास्ट, वहाँ पर उन्होंने लास्ट जो थी लाइफ बोट पुलिंग अवे, वहाँ पर उन्होंने देखा जो लास्ट बोट है वो भी जा रही है. सो द कैप्टन एंड क्रू वर अबंडिंग द शिप. जो कैप्टन था और जो क्रू मेंबर्स थे वो उस शिप को छोड़कर जा रहे थे. मिस्टर रॉबिन्सन शाउटेड आफ्टर देम एंड वेव्ड हिज आर्म्स टू सिग्नल देम टू रिटर्न फॉर हिज फैमिली. मिस्टर रॉबिन्सन ज़ोर से चिल्लाए, अपनी बाजू ऊपर उठा के उनको सिग्नल देने की कोशिश की कि वो उनकी फैमिली के लिए वापस आए.
इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। द लाइफ बोट स्लिप्ड ऑफ इंटू द फोमिंग सी, जो लाइफ बोट थी वो उस समुद्र में, ऊपर उठती लहरों वाले समुद्र में गायब हो चुकी थी। लीविंग द रॉबिन्सन बिहाइंड, और वहाँ पर रॉबिन्सन फैमिली को छोड़कर जा चुकी थी। दे वर द ओनली ह्यूमन्स लेफ्ट ऑन द शिप, वही अब उस शिप के ऊपर रह चुके थे। अ सडन जॉल्ट नॉक्ड मिस्टर रॉबिन्सन एंड फ्रिट्ज टू द डेक, अचानक से एक जॉल्ट झटका लगा मिस्टर रॉबिन्सन और फ्रिट्ज को, और वो डेक के ऊपर गिर गए। द शिप हैड रैम्ड बिटवीन टू लार्ज रॉक्स, क्योंकि जो शिप थी वो दो बड़ी बड़ी रॉक्स के अंदर, जटिंग आउट ऑफ द सी, समुद्र के अंदर से वो जो रॉक्स थी, उनके दो रॉक्स के बीच में जो शिप जो थी वो फंस चुकी थी। फ्रिट्ज एंड हिज फादर कुड सी द फेंट आउटलाइन ऑफ ए रॉकी कोस्ट अबाउट 3 माइल्स अवे, फ्रिट्ज और उसके पापा को दिख रहा था कि 3 माइल्स अवे थोड़ा सा रॉकी कोस्ट है, रॉकी एरिया है। इट वॉज लैंड, और वो एक लैंड थी। ऑल राइट, बट हाउ वुड दे गेट देयर विदाउट अ लाइफ बोट, पर वो वहाँ तक कैसे पहुँचे बिना किसी लाइफ बोट के। मिस्टर रॉबिन्सन एंड फ्रिट्ज रीजॉइन द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिलो डेक, अब मिस्टर रॉबिन्सन और जो फ्रिट्ज है उनका बेटा वापस से अपनी फैमिली के पास डेक के अंदर में आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। विद एज मच एंड करेज एज ही कुड मस्टर, जितना हिम्मत थी उनके अंदर उन्होंने इकट्ठी की और बोला, वी आर दी ओनली वंस लेफ्ट, हम ही सिर्फ यहाँ पर रह गए हैं। द कैप्टन एंड क्रू हैव टेकन द लास्ट बोट, कैप्टन और क्रू जो है लास्ट बोट लेकर जा चुके हैं। आर ओनली चांस इज़ टू सिट आउट द स्टॉर्म हेयर, हमारा कहते अब यही चांस है कि हम वेट करें कि स्टॉर्म जब बंद हो तो, और फिर हम यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ही पॉज्ड, वो रुके, लुकिंग एट द ट्रबल्ड फेसेस ऑफ हिज फैमिली, अपने जो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके उन्होंने चेहरे देखे। लेट्स ट्राई टू गेट सम रेस्ट नाउ, फिर उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया कि चलो हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। वी विल नीड आवर स्ट्रेंथ इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमें हमारी ताकत की ज़रूरत होगी सुबह में, मॉर्निंग में। However, try as they would, none of the Robinson slept a wink that night. कहते हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उनमें से एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपका पाया, वो सो नहीं पाए। Now we will do the fill-ups only, that is given in the section 1, in the beginning of the section 1 itself. The storm lasted for 7 days. So this answer we got from this section 1. So the storm was for 7 days. Mr. and Mrs. Robinson had 4 children. So they had 4 sons rather. They spent the night on the ship. उन्होंने वो जो रात थी वो शिप के ऊपर ही बिताई. That night the Robinsons were very worried. बहुत चिंता में थे. And were unable to sleep, और इसलिए वो सो भी नहीं पाए. So this is your section 1 of chapter 4 of your English reader.